Hello everyone, my name is Sameer Sardana. Welcome to the channel of Easy Ganit. In this video, we will be learning the remainder theorem concept, guys. Right? So complete remainder theorem हम discuss करने वाले हैं. Number system का second chapter is of remainder theorem. क्या क्या इसके अंदर different parts हैं, कितनी videos में ये पूरा concept clear होगा, we'll talk about that. Okay, so before we start, guys, please subscribe to the channel and also click on the bell icon so that you get the notification of all the upcoming videos. Also, please share this channel with your friends because we are going to upload the complete content of your competitive exams free of cost on this channel, right? So please share the channel, share the links of the videos with all of your friends. Okay, so guys, remainder theorem के concept के अंदर we will be taking this complete chapter in the 4 different parts. The first video, right, this one, we will be talking about the basic remainder theorem. First video में हम basic remainder theorem की बात करेंगे. Second, we will talk about Euler remainder theorem. Euler remainder theorem is basically a theorem which helps us in finding the answers of lengthy questions of remainder theorem quickly. Euler remainder theorem से जो questions होते हैं वो सारे के सारे question basic remainder theorem से भी easily solve होते हैं, but Euler remainder theorem question को short कर देगा, आपके question के solution को short कर देगा. You will be able to find out the answer in 10 seconds of very complex questions which take a lot of time if you solve it with the basic remainder theorem. थर्ड में हम विल्सन रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे जिसमें फैक्टोरियल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका रिमाइंडर अगर आपको निकालना हो किसी नंबर से डिवाइड करके तो आपको विल्सन रिमाइंडर थ्योरम बहुत हेल्प करता है. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो कि डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से है. पहला वीडियो नंबर सिस्टम का हमने डिविजिबिलिटी रूल पे लिया था, तो वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी आपको आने वाली वीडियो से मिल जाएगा. सो पूरा रिमाइंडर का चैप्टर ये 4 वीडियोस में कवर होगा गाइस, राइट. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नंबर सिस्टम गाइस. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टॉक अबाउट कैट, talk about IP MAT or any competitive exams, CLAT, SSC, CGL, right, or banking. Remainder का question आप easily अपने exam में expect कर सकते हो. This is not a topic that you can miss. Okay, so let's start with the basic concept, guys. Basic concept के अंदर सबसे पहले हम concept का explanation सीखेंगे, and then we will be discussing some questions based on it, right? So these are the questions that we'll be talking about, the remainders of these questions, right? And then we'll be talking about these questions. But first we will be talking about the concept. So concept हम पहले सीखेंगे, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. रिमाइंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों आपको एक तो रिमाइंडर का डेफिनेशन आना चाहिए. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिमाइंडर? अगर रिमाइंडर करना है तो उसका बेसिक डेफिनेशन ही आपको नहीं पता होगा तो आगे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है. सी गाइस, रिमाइंडर का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर मैंने 83 को लेट्स से 10 से डिवाइड किया तो आप क्वोशिएंट का वैल्यू क्या लोगे? 8. ये नंबर आपका डिविडेंड है. This your divisor, this is the quotient, right? So you will say quotient would be 8. So यहाँ पे वैल्यू आएगी 80 और आपका रिमाइंडर जो बचेगा 3. इसको क्यों रिमाइंडर बोलते हैं? इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि आपके पास 83 चॉकलेट है और आपने 10-10 करके अपने फ्रेंड्स में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 83 चॉकलेट्स को 10-10 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 10-10 करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके 8 फ्रेंड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. 8 फ्रेंड्स को आपकी 10-10 चॉकलेट मिल जाएंगी और 3 चॉकलेट बच जाएंगे, राइट. सो जो चॉकलेट बच गई उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, राइट. सो ये रिमाइंडर को या तो डिविडेंड में से आप माइनस करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 10 का एग्जैक्ट मल्टीपल मिलेगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 3 चॉकलेट बची हैं, 10 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 7 चॉकलेट्स और अगर ऐड हो जाए तो 9 फ्रेंड्स को चॉकलेट्स मिल जाएंगे, राइट. तो रिमाइंडर को माइनस करने से इस डिविडेंड से पिछला नंबर जो 10 का एग्जैक्ट मल्टीपल है वो 80 आएगा, या फिर आप इस नंबर में 7 ऐड करोगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो 80 से नेक्स्ट वाला मल्टीपल मिल जाएगा, राइट. ये मीनिंग होता है बेसिक का, और बेसिक रिमाइंडर का, राइट. रिमाइंडर की बेसिक डेफिनेशन है ये. नाउ बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है? बेसिक रिमाइंडर थ्योरम बच्चों ये बोलता है कि अगर आपके पास लेट्स से 8 और 10 नंबर्स किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू एक नंबर को आपने एक्सप्रेस किया हुआ है, राइट. काफी बड़ा नंबर है, लेट्स से कि 837 into 783, right? So these are the mathematical operations plus 878. ये कोई नंबर है, right? And examiner ask you कि बच्चों ये बताओ कि ये नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा? If I divide this number and divide it by 9, what will be the remainder? So I will explain the basic remainder theorem with the help of example. तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो लिखोगे तो आप unnecessarily कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. सो आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझिए.
सो अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले 837 को 783 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 878 ऐड करो एंड देन उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। नहीं, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम सेज कि जिस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये नंबर्स को एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसे इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को आपने एडिशन यूज किया हुआ है, राइट। सो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि आप इन नंबर्स के इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालो और जो मैथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज इनके रिमाइंडर्स में के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उनके बीच में भी प्लस का साइन आ जाएगा, राइट। और 9 को डिवाइड करने से, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, वो आप 9 के डिविजिबिलिटी रूल से फर्स्ट वीडियो लेसन में जो हमने सीखा था, राइट। जिन बच्चों ने नई वीडियो देखा वो वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, डिविजिबिलिटी रूल आप देख सकते हो। उसमें सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालते हैं। सो देखो सम यहाँ पे क्या है, 8 + 3 कितना हुआ 11, 11 + 7 कितना हुआ 18। तो 18 तो 9 का मल्टीपल है, दैट मींस यहां से आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर यहां से रिमाइंडर 0 मिलेगा तो यहां पे जो भी रिमाइंडर हो मुझे करने की जरूरत नहीं है, because 0 into something will always be 0, right? Whatever is the remainder that will be coming from this, I do not need to calculate it, right? So let's say कि यहाँ से remainder R1 आएगा, R1 into 0 0 हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो डिपेंड करेगा वो 878 को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा उससे ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो 837 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 कहां से आ गया बच्चों, डिजिट्स का सम करना है, वो डिविजिबिलिटी रूल में आता है, फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 878 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर आपको निकालना है, 8 + 7 15, 15 + 8 होगा 23। तो यहाँ पे 23 को 9 से डिवाइड करो आप, 23 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 5। तो 0 into R1 will be 0 plus 23/9 give you a remainder of 5। तो आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 नंबर हो, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके अंदर यूज हुए वही आपको एक्सप्रेशन एज इट इज रिमाइंडर में यूज करने हैं फाइनल आंसर निकालने के लिए। ओके, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एडवांस लेवल क्वेश्चन। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि आपको ये दिया हुआ है 3 6 5 7 8 9 2 3 multiplied, or let's say the power 4 over here into 7 8 6 1 2 9 2 8 raised to power 5। नाउ द क्वेश्चन इज ये नंबर को 11 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। सो आप बेसिकली क्या करोगे, आप ये एक्सप्रेशन को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो और उसी रिमाइंडर के ऊपर पावर 4 लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो और उसकी पावर 5 लगा दो। और ये नंबर को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, वो कंसेप्ट आपको डिविजिबिलिटी रूल में मिलेगा। शॉर्टकट क्या है उसका कि ऑल्टरनेट डिजिट का सम, जो ऑड पोजीशन पे है उन डिजिट्स का सम, और जो टेंस के ऑल्टरनेट पोजीशन पे है उन डिजिट के सम का जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को 11 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो 3 के ऑल्टरनेट में डिजिट्स निकालो। 3 के ऑल्टरनेट में कौन कौन से डिजिट हैं गाइस, देखो 3 के ऑल्टरनेट में अगर मैं डिजिट देखूं 3 9 7 6, राइट, इसको हम बोलते हैं यू, मतलब यूनिट डिजिट के ऑल्टरनेट डिजिट का सम। 3 + 9 12, 12 + 7 होगा 19, 19 + 6 हो जाएगा 25, राइट। ये आपका u आ गया। t की वैल्यू निकालते हैं, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। सो यहाँ पे u - t की जो वैल्यू आएगी आपकी, u - t विल बी इक्वल टू 25 - 18 दैट इज इक्वल टू 7। मतलब ये पूरा नंबर आपको 11 से डिवाइड होके 7 का रिमाइंडर देगा और 7 की पावर 4 एज इट इज इस रिमाइंडर के ऊपर लग जाएगी। तो 7 की पावर 4 यहां से रिमाइंडर आया, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरे नंबर को भी 11 से डिवाइड करना है, तो वही डिविजिबिलिटी रूल बच्चों आपको लगाना है, राइट। यूनिट डिजिट के ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाला, राइट, दैट इज u। 8 + 9 17 + 1 18 + 8 26। t इज रिमेनिंग डिजिट्स का सम, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 7 17। सो अगेन यहाँ पे आप u - t की जब वैल्यू निकालोगे
तो 26 में से 17 आपको माइनस करना है। 26 में से 17 को माइनस करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 9 की। दैट मीन्स यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो 9 आएगा। सो 7 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 5, ये नंबर आया। अब ये नंबर को 11 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका अब ये बन गया, राइट। दिस कंप्लीट क्वेश्चन हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू दिस पार्ट, दैट 7 पावर 4 इंटू 9 पावर 5 को 11 से कैसे डिवाइड करना है। अब 7 की पावर 4 को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन में शॉर्ट करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 5, इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। लिसन गाइस, 7 की पावर 4 को आप लिखो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, राइट। वैसे तो इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आपने नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा नहीं है, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आप नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 11 से बड़ा नहीं आ सकता है, राइट। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 11 से छोटा ही आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 2 3 4 अप टू 10 में से कुछ आ सकता है, राइट। क्योंकि 11 को डिवाइड करके 13 रिमाइंडर नहीं आ सकता। 13 आएगा तो वो फिर एक बार और डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगा, राइट। तो आपको तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 11 से नीचे नहीं चला जाएगा। 9 की पावर 5 को आप क्या लिखोगे, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 9, इसको 11 से डिवाइड करना है आपको। 7 की पावर 2 49 होता है बच्चों, राइट। 49 इंटू 49 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 9, ये नंबर को 11 से डिवाइड करना है आपको। नाउ 49 को 11 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, फिर यहां से भी 5 मिलेगा। 81 को 11 से डिवाइड पे रिमाइंडर करने पर मिलेगा रिमाइंडर 4, यहां से भी 4 और यहां से 9। सो 5 इंटू 5 इंटू 4 हो गया 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 11। अब 100 को 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, 36 को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। तो आपके फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3, राइट। बेसिकली आपको डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक आपका रिमाइंडर 11 से छोटा नहीं आ जाता। यही बेसिक रिमाइंडर थ्योरम है गाइस, ओके। इसी का हम यूज करेंगे आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, जिसमें पावर बहुत ज्यादा बड़ी होगी। उसका कंसेप्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ओके। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर, राइट। यू कैन वॉच दिस कंप्लीट स्क्रीन नाउ, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है। नेगेटिव रिमाइंडर आपके क्वेश्चन को, जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा था कैलकुलेशन में, बट अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पता है तो आपके क्वेश्चन और भी शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। नेगेटिव रिमाइंडर से आपका कैलकुलेशन पार्ट रिड्यूस होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का मीनिंग क्या है गाइस, देखो। अगर सपोज करो मैं 35 को 11 से डिवाइड करो, इफ आई डिवाइड 35 बाई 11, तो आप बोलोगे कि यार आपका क्वेश्चन आएगा 3, राइट, और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। ओके, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्वेश्चन एज 3, अगर मैं क्वेश्चन को 3 नहीं लेता हूं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं, राइट, तो उस केस में मेरा जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर विल बी -9। उस केस में रिमाइंडर जो आपका आएगा दैट विल बी -9। क्यों? क्योंकि 35 को 44 माइनस करोगे तो -9 में रिमाइंडर आएगा। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, यहां पे आपने 3 क्वेश्चन पे नंबर लिया, क्वेश्चन का थर्ड मल्टीपल लिया, मतलब क्वेश्चन से नीचे वाला जो इस डिविडेंड से नीचे वाला जो 11 का एग्जैक्ट मल्टीपल था वो लिया आपने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपने 35 से ऊपर का जो नंबर था, बड़ा जो नंबर था, जो 11 का एग्जैक्ट मल्टीपल था, वो आपने यहाँ पे लिया। सो ये मल्टीपल लेने पे -9 रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 35 में 9 और ऐड करूंगा, इसका मीनिंग ये है कि 35 में 9 की डेफिशिएंसी है, 35 में 9 की शॉर्टेज है नेक्स्ट मल्टीपल के लिए। ये आपको बोलता है कि 35 में 2 का एक्स्ट्रा वैल्यू है प्रीवियस मल्टीपल के कंपैरिजन में, तो 2 कम है, ये वाला नंबर 11 के प्रीवियस मल्टीपल से 2 कम है। और यहां पे ये नंबर बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 के नेक्स्ट मल्टीपल से 9 कम है। तो ये नेक्स्ट मल्टीपल की बात करता है और ये पॉजिटिव रिमाइंडर प्रीवियस मल्टीपल की बात कर रहा है, राइट। इतना ही डिफरेंस है, इन दोनों का एग्जैक्टली सेम ही मीनिंग है। दैट मीन्स अगर 9 का शॉर्टेज है 11 के नेक्स्ट मल्टीपल के लिए, तो 35 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो मेरे को इसका नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा, ओके। और या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर नेक्स्ट मल्टीपल के लिए 9 का शॉर्टेज है तो इसका मतलब प्रीवियस मल्टीपल से 2 का एक्स्ट्रा वैल्यू होगा, बिकॉज हम 11 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मल्टीपल से ये नंबर 9 छोटा है, तो प्रीवियस जो मल्टीपल है 33,
राइट, उससे ये नंबर 2 एक्स्ट्रा होगा। ये 2 कैसे पता लगा? 11 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो एज इट इज ये नंबर उठा के आप डिवाइजर में ऐड करो। 11 में -9 किया तो जो नंबर आएगा वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। दैट मीन्स 13 को किसी नंबर को आपने लेट्स से कि 13 से डिवाइड किया। इफ आई एम डिवाइडिंग अ नंबर बाय 13, ओके, सी दिस, अगर आप किसी नंबर को 13 से डिवाइड कर, लेट्स से कोई नंबर n है और 13 से आपने इसको डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर आया माइनस में 5। ना माइनस में 5 रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो 13 और -5 कितना आएगा? 13 में -5 अगर मैं एज इट इज ऐड करूंगा तो मेरे को 8 का रिमाइंडर मिलेगा, राइट। सो 13 से डिवाइड करने पे -5 का रिमाइंडर इज सेम एज अ +8 रिमाइंडर। तो -5 रिमाइंडर और +8 रिमाइंडर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ व्हेन माय डिवाइजर इज 13। ओके, सो अगर आप किसी नंबर को लेट्स से कि 133 से डिवाइड कर रहे हो, राइट, किसी नंबर n को, और आपका रिमाइंडर जो है लेट्स से कि 8 का रिमाइंडर, अब -8 का रिमाइंडर आया, तो -8 रिमाइंडर का मतलब है कि अगर मुझे इसको प्लस में देखना है तो 133 में -8 कर दो, दैट मीन्स 125। सो 125 का प्लस का रिमाइंडर और -8 का रिमाइंडर एक ही बात है। सो यहां से आपने ये सीखना है कि नेगेटिव रिमाइंडर को प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव रिमाइंडर को एज इट इज उस डिवाइजर में ऐड कर दो तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन में कैसे आपको हेल्प करेगा आगे आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, राइट। इसमें आगे का जो हम वीडियो, आगे के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन गाइस, इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस अब करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 8 पावर 572 इज डिवाइडेड बाय 7। 8 की पावर 572 को 7 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है गाइस। 8 की पावर 572 का मीनिंग ये होता है कि आपने 8 को 572 टाइम्स लिखा हुआ है, राइट। यू हैव written down the 8 for 572 times। इसको 7 से डिवाइड करना है आपको गाइस। 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये सारे नंबर्स जब 8 से डिवाइड होंगे तो 1 का ही रिमाइंडर देंगे। सो दैट मीन्स आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। सो 1 इज अ फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। क्यों 1 आया? बिकॉज जो आपका डिवाइजर है, जो आपका डिविडेंड है और जो डिवाइजर है, इस डिविडेंड के ऊपर पावर लगी है 572। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। 8 जब 7 से डिवाइड होगा तो 1 का रिमाइंडर देगा, राइट। तो मैं बेसिक रिमाइंडर थ्योरम ही इसमें यूज कर रहा हूं गाइस, राइट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सीरियस। 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, और बेसिक रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो पावर यहां लगी है वो इसके रिमाइंडर में लग जाएगी, राइट। सो 1 की पावर 572 आया, राइट, और 1 की पावर 572 1 ही होगा, तो आपका आंसर 1 आ गया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, इस केस में क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे आपके डिविडेंड और डिवाइजर में 1 का डिफरेंस आपको सामने ही दिख रहा था, बट लुक एट दिस क्वेश्चन, 8 पावर 572 इज डिवाइडेड बाय 63 ओवर हियर। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज 8 को 63 से डिवाइड करने पे ना तो आपको +1 मिल रहा है ना ही -1 मिल रहा है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे आप, 8 की वो पावर लो जो 63 से +1 या -1 के डिफरेंस पे है। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड्स पावर एंड द डिवाइजर एज 1। डिविडेंड की कोई एक ऐसी पावर लो जो इस डिवाइजर से +1 या -1 के डिफरेंस पे हो, या +2 या -2 के डिफरेंस पे हो, उससे आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। सो 8 की क्या कोई ऐसी पावर है जो 63 से +1 या -1 पे है? यस, 8 की पावर 2। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 की पावर 2, मतलब पावर में से 2 मैंने कॉमन ले लिया। अगर आप पावर में से आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा अंदर 2 into 1 286 गाइस, राइट। 286 आपके पास बचेगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी इसको 63 से आपको डिवाइड करना है। दिस इज नाउ 8 power 2 is 64. 64 power 286 is supposed to be divided by 63. 64 when divides by 63 give you a remainder of 1. Now 1 power 286 will give you a remainder of 1. So that's it. This is the answer of the question, right? Second. So always try to make a difference of +1 and -1 with the power of any dividend and the divisor. Okay, next question. Look at the next question here.
What do we have here? 8 power 572 is now divided by 65. इसमें भी +1 का डिफरेंस बन रहा है क्या? क्या 8 की कोई ऐसी पावर है जो +1 के डिफरेंस पे? गाइस 8 की पावर 2 अगर लेता हूं तो 64 है। 64 65 से +1 तो नहीं देता है, बट अभी हमने नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट की बात की, इसीलिए वो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। 64 को 65 से डिवाइड करने पे आपका क्वोशिएंट आएगा 1 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो भले +1 नहीं आ रहा है मेरे को, तो +1 या -1 में से कोई भी मिलेगा तो काम चलेगा मेरा, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, इस नंबर में से मैं 8 की पावर 2 को लिया और इसमें लिखा 286 डिवाइडेड बाय 65, राइट? ये 286 कैसे आया बच्चों? 2 लिया आपने बाहर कॉमन। आगे नाउ 8 का पावर 2 64 होता है गाइस। 64 को 65 से डिवाइड करने पे वी नो द रिमाइंडर विल बी -1। अब -1 की पावर 286 है गाइस। अगर -1 की पावर आपके पास इवन हो तो आपका आंसर +1 आएगा, राइट? सो यहाँ पे आप बोल सकते हो द आंसर विल बी +1। -1 पावर इवन पावर मीन्स आंसर विल बी +1, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइस, राइट? सो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो व्हाट डू वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? 8 पावर 572 इज डिवाइडेड बाय 511। सीरीज यहाँ पे आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स काम करेंगे, जो हमने आगे पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने 1000 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर सीखा था, राइट? क्यूब्स का वीडियो अभी डालना पेंडिंग है। क्यूब्स आपको आने चाहिए 22 तक। 8 की क्या कोई ऐसी पावर है जो 511 से +1 या -1 के डिफरेंस पे हो? यस गाइस, 8 का पावर 3 अगर आप देखो, 8 का पावर 3 बच्चों 512 होता है, राइट? सो अगर मैं इस नंबर को 8 की पावर 3 की टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या करोगे गाइस? देखो आपके पास यहाँ पे पावर है 572। सो 572 में से अगर मैं 3 बाहर निकालूंगा तो मुझे जो क्वोशिएंट मिलेगा गाइस आप देख सकते हो, इट वुड बी 1 3 into 9 190, राइट? सो 570 और रिमाइंडर बचेगा 2। सो ये पावर में से 3 मैंने बाहर निकाला तो मेरा क्वोशिएंट आएगा 190, बट 3 into 190 तो बच्चों 570 होता है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 का बच रहा है, तो ये जो 2 का रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा। देखो इन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 2 बाहर निकालने पे एग्जैक्ट कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा था, बट यहाँ पे 3 बाहर निकाल, 3 मैंने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि 5 की पावर 512 5 डिवाइजर से 1 के डिफरेंस पे है, +1 के डिफरेंस पे है। लेकिन 3 बाहर निकालने पे ये नंबर पूरा पूरा मल्टीपल नहीं बन रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। मतलब जब मैं 3 की पावर एक साथ एक ग्रुप में लेके आऊंगा तो 8 की 2 पावर अभी बच जाएगी, तो मैंने क्या किया, उसको अलग से लिख दिया। तो 8 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 512। 512 को 190 से डिवाइड किया, 8 की पावर 2 64 डिवाइडेड बाई 511। ये नंबर को 511 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है बच्चों। 1 into 64 will give you the answer as 64। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 64। ओके, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन गाइस। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है गाइस। इससे आगे आने वाले, इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, उनको आपने शॉर्ट करके कैसे करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपका सो दैट आपको कंसेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। ओके, ये इसके बात करेंगे, इससे पहले ये क्वेश्चन। 7 की पावर 579 को 342 से डिवाइड किया आपने। 7 का, अब देखो हमेशा आपको ये वाले नंबर को इस नंबर से कंपेयर करना है। यू ट्राई टू मेक अ डिफरेंस ऑफ +1 एंड -1। 7 की कौन सी पावर +1 या -1 पे आती है गाइस? 7 की कौन सी पावर 342 से +1 या -1 पे? 7 का पावर 3 इज 343 होता है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। ओके, सो 7 की पावर 3 अगर मैं यहां से लूं कॉमन, राइट? क्यों लिया कॉमन? बिकॉज मुझे जो नीचे नंबर दिया हुआ है 342 का है, तो ये +1 और -1 का डिफरेंस बनाने के लिए इसमें +1 का बनेगा। तो अगर मैं इसमें से 3 बाहर लेता हूं बच्चों, तो 3 बाहर लेने से कितना बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा? 579 को 3 से डिवाइड किया, 1 2 बचा, 3 into 9 97, 3 पूरा पूरा चला जाएगा, राइट? 579 में से 3 बाहर निकालने पे एज इट इज पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और भी आसान हुआ।
तो 7 की पावर 3 होता है 343, और आपके पास पावर है यहाँ पे 193, यहाँ लिख देते हैं, राइट। 343 पावर में 193 डिवाइडेड बाई 342। 343 को 342 से डिवाइड किया बच्चों, रिमाइंडर आएगा 1 एज इट इज, तो 1 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। इफ यू वांट टू सी दिस क्लियरली यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 11 की पावर 545 को 122 से डिवाइड करना है। लुक फॉर सम पावर ऑफ 11 जो 122 से प्लस 1 और माइनस 1 के डिफरेंस पे। 11 का पावर 2 होता है 121, तो आप क्या करोगे इस नंबर में, आप ये पावर में से 2 की पावर अलग करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि नीचे 122 है और मेरे को प्लस 1 और माइनस 1 का डिफरेंस ही चाहिए डिविडेंड और डिवाइजर में। तो जब मैंने इसमें से 2 बाहर लिया तो यहाँ पे आएगा 272, और 11 की पावर 1 बच जाएगी, राइट। 11 पावर 1 विल बी रिमेनिंग। नाउ 11 पावर 2 होता है 121, 121 का पावर 272 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 122। ये नंबर को 122 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच्चों -1 का आएगा, और -1 की पावर है 272, और 11 को तो 122 से डिवाइड करने पे 11 ही रिमाइंडर आने वाला है, और -1 की पावर इवन है बच्चों, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। +1 इंटू 11, आंसर विल बी 11। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11, राइट गाइस। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि इन सारे ही क्वेश्चंस के अंदर आपके नंबर्स के अंदर या तो +1 का डिफरेंस बन रहा था डिवाइजर्स की किसी पावर को लेने पे, और डिविडेंड की किसी पावर और डिवाइजर के बीच में डिफरेंस आप +1 या -1 बना पा रहे थे। देयर विल बी सम क्वेश्चन गाइस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आप +1 और -1 का डिफरेंस नहीं बना सकते। तो जिन नंबर्स में आप +1 और -1 का डिफरेंस नहीं बना पाओगे, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में। क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा बट वो लेंथी हो जाएगा, तो उन क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका है ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम। बट एक एग्जांपल हम ऐसा जरूर करेंगे बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से भी, फिर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड के साथ ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम में हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन में करेंगे गाइस। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको बोला क्वेश्चन में 60 की पावर 100 को 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम ये है कि 60 की कोई ऐसी पावर ढूंढना जिसका डिफरेंस 11 से डिवाइड करने पे +1 या -1 पे आए विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर आप +1 और -1 का डिफरेंस डिविडेंड की पावर में और डिवाइजर में नहीं लेके आ पा रहे हो, तो आप उसको डिवाइड करना शुरू करो। डिवाइड करने का मतलब है कि आप 60 को 11 से डिवाइड कर दो। 60 को 11 से डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर जो आएगा 5 आएगा। 60 को 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5, और 5 की पावर जो है वो एज इट इज इसी के ऊपर लग जाएगी। यही तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि पावर और मल्टीप्लीकेशन साइन और प्लस साइन एज इट इज रिमाइंडर्स में लग जाएंगे। अब क्या आप 5 की कोई पावर ऐसी सोच सकते हो जो 11 से +1 या -1 के डिफरेंस पे नहीं सोच पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू डू इज, आप 5 की कोई भी पावर ले लो, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3, 4, 5, जो आपका मन करता है आप लीजिए। बेसिकली आपका पर्पस ये है कि आपको पावर को रिड्यूस करते जाना है। सो अगर मैं यहां से 5 की पावर 4 ले लेता हूं, लेट्स से इफ आई टेक द 5 पावर 4, तो बाहर 25 आ जाएगा। 4 आपने अंदर ले लिया तो बाहर 25, 4 इंटू 25 100 होता है। अब देखो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। तो एक काम करो, 625 को 11 से आप डिवाइड कीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करो, उसको मत बोलना 6 + 5 11, 11 - 2 इज 9। तो ये नंबर जो रिमाइंडर देगा वो 9 का देगा, तो 9 की पावर 25/11। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि यार 9 की पावर 25 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। अब इसको आप और शॉर्ट कैसे कर सकते हो, राइट। या तो एक ऑप्शन है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर में चले जाओ, या फिर इसको और शॉर्ट करो। आप देखो इसको अगर मुझे और शॉर्ट करना है, सो 9 को 11 से डिवाइड करने पे आप रिमाइंडर -2 ले लो। -2 की पावर 25 आएगा यहाँ पे। अभी हमने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट किया था। 9 को 11 से डिवाइड करने पे अगर क्वेश्चन 1 लोगे तो रिमाइंडर -2 आ जाएगा। अब -2 की पावर 25 है, तो माइनस को बाहर ले लो और 2 की कोई ऐसी पावर ले लो जो 11 से +1 नहीं आ रहा है, तो +2 या +5 या किसी भी डिफरेंस पे हो। इस 2 का पावर 5 अपने को पता है 32 होता है, तो कैन आई राइट डाउन दिस नंबर एज 2 की पावर 5 पावर 5, राइट। सो 2 की पावर 5 जो होगा वो आएगा 32,
32 की पावर 5/11। अब 32 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर माइनस में 1 आएगा। देखो बच्चों, राइट, माइनस वाला रिमाइंडर आप यूज करोगे तो आपके में कैलकुलेशन, आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन और भी रिड्यूस हो जाएगा। 32 को 11 से डिवाइड करने पे -1 का रिमाइंडर, और ये -1 की पावर 5 है। ये -1 तो ये वाला है, राइट, जो माइनस का साइन पहले से चल रहा था। -1 की पावर 5 आएगा, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर +1 बनेगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है +1। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, सो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का। इसके और भी एग्जांपल हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट इन क्वेश्चंस को इस तरह से ना करके ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम से आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे, जिसमें हम ऑयलर रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। बट उसको सीखने से पहले आपको बेसिक आना चाहिए था, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो लेसन में आपको बेसिक रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन किया। Guys, just keep on watching this channel. You will be getting the free content for all your competitive exams in the coming sessions. And all you have to do is just to encourage us to put more free videos. Just please share the video with all of your friends and like the video, share it. And please do not forget to subscribe to the channel. Otherwise, you will miss a lot of live session and video recordings that we are going to put in the coming days. Thank you so much for watching this channel, guys. Please promote us with all of your friends so that it encourages to put more free videos, guys. Thank you so much, guys. See you in the next session. Bye, take care.